চক্রবহনে আমি সমাদৃতা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নয়াপট্টি থেকে। নয়াপট্টিতে ভোট গ্রহণ চলছে এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে রীতিমতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রয়েছেন, কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। কিন্তু নয়াপট্টির অবস্থা সকালবেলা কিন্তু এই রকম ছিল না, সেটা বলতে পারবে আমাদের প্রতিনিধি অনুপমের কাছে যাবো। তার আগে আপনাদের জানিয়ে নিই আরো দুজন আছে আমাদের সঙ্গে। কল্যাণী থেকে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি পিউ, আমার সঙ্গে বরানগর থেকে রয়েছে অর্ণব। ওদের কাছে যাওয়ার আগে আমি অনুপমের কাছে যাব। অনুপম, সকাল থেকেই সল্টলেকের শান্তিনগর এবং নয়াপট্টি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমেই তোমার কাছে জানতে চাইবো, নয়াপট্টিতে ঠিক কি ঘটেছিল সকালবেলা? নমস্কার, চারে চক্রবর্তী আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অনুপম। 116 বিধাননগর বিধানসভার সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে। ইতিমধ্যে যেটা আমরা কমিশন সূত্রে জানতে পাচ্ছি 45%-এরও বেশি ভোট পড়েছে। তবে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গণ্ডগোল হয়েছে। শান্তিনগর, নয়াপট্টি, দত্তাবাদ এই সমস্ত এলাকায় বিক্ষিপ্ত গণ্ডগোল হয়েছে। যেমনটা সমাদৃতা তুমি জানতে চাইলে যে নয়াপট্টিতে ঠিক কী ঘটেছিল। নয়াপট্টিতে তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় 2টো ছুঁই করছে। এমন সময় বিজেপির যিনি প্রার্থী রয়েছেন সব্যসাচী দত্ত, তিনি নয়াপট্টিতে পৌঁছন এবং সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন 34 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং এই মুহূর্তে কোঅর্ডিনেটর, তিনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রার্থী তার কাছে প্রথমে জানতে চান যে তিনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রথমে ওই কাউন্সিলর জয়দেব নস্কর জানান যে তিনি পোলিং এজেন্ট, রিলিভার, কিন্তু যখন সব্যসাচী দত্ত এই রিলিভারের কার্ড দেখতে চান তখন তিনি দেখাতে পারেননি। তারপর তিনি জানাচ্ছেন যে তিনি একজন ভোটার, ওই অঞ্চলের ভোট দিতে যাবেন। তখনই সব্যসাচী দত্ত জানতে চান তিনি কেন এখনও ভোট দেননি, ভোট দিয়ে ঘরে চলে যাওয়ার কথা। কারণ নির্বাচন কমিশনের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী 100 মিটারের মধ্যে কোনো জমায়েত করা যায় না। কিন্তু তৃণমূলের এই কাউন্সিলর একাধিক লোক নিয়ে সেখানে জমায়েত করেছিল। এখান থেকে আপত্তি শুরু হয় এবং এখান থেকেই দুপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়, প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নয়াপট্টির এই ঘটনা কার্যত চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল কমিশনের কর্তাদের। সেই সময় আমরা দেখেছি যে এক গাড়ি ফোর্স সেখানে পৌঁছায় এবং তারপর সেখানে জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। নয়াপট্টিতে যেমন ঘটেছে একইভাবে অন্যান্য জায়গায় ঘটেছে। এই মুহূর্তে আর কি খবর রয়েছে আমাদের? धन्यवाद। 2 मई को दीदी जा रही है और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मित्रों, आज मैं जहां यहां आया हूं, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा में वैश्विक प्रयोग किया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसी के आसपास की ये भूमि है। त्रिभंगा रॉय का जन्मभूमि है। घुसखोरा की रत्नती कालीबाड़ी का जो पवित्र मंदिर यहाँ पर है वो इसी की भूमि है। और आज मैं जो आया हूँ वो भूमि, महान बंगाल की भूमि को मैं प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करना। मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं वैसे भी लंबी बोलने वाला आदमी नहीं हूं। आप मुझे बताओ भाई, एक कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? अरे ऐसे धीरे बोलोगे तो नहीं जाएगी, जोर से बोलो। कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये सिंडिकेट वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, बंगाल में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक तो घुसपैठिए है जो दीदी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे घुसपैठियों को हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। दूसरे है मेरे और आपके जैसे लोग जो 2म दर्जे के नागरिक हैं, जिनको अपना त्योहार भी मनाना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन करना है तो आपको परमिशन नहीं मिलती है। सरस्वती पूजा करनी है तो आपको परमिशन नहीं मिलती है। और तीसरे हैं शरणार्थी, जिनको नागरिकता भी नहीं दी। मेरे नमोशूद्र समाज के लोग, मतवा समाज के भाई, इनको नागरिकता नहीं दी। मैं आप लोगों को पूछने आया हूं, ग्राम वालों, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है?
कांग्रेस रोक सकती है, कम्युनिस्ट रोक सकते हैं, केवल और केवल घुसपैठ कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक सकती है मित्रों, और कोई नहीं। मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को भाजपा की सरकार बना दो, उसके बाद में सरहद के उस पार से इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं। आप सभी लोग चाहते हो ना कि दुर्गा विसर्जन, दुर्गा पूजा बेरोक टोक होनी चाहिए? जोर से बोलो, चाहते हो ना? शालाओं में शिक्षा के स्थान पर सरस्वती पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, किसी की हिम्मत नहीं है दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को रोकने की, कोई नहीं रोक पाएगा। और मित्रों, भाजपा सरकार बनाने के साथ ही मेरे मतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग, इनको हम नागरिकता देकर सम्मान के साथ भारत का नागरिक बनाने का काम भी करने वाले हैं। दीदी को जितना विरोध करना है वो करे, सीए लाकर सारे शरणार्थियों को हम नागरिक बनाएंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया है। इतनी सारी बहनें दीदी बैठी हैं, बेटी को पढ़ाते हैं तो फीस भरनी पड़ती है ना माताएं, बताइए भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, पूरे बंगाल में केजी से पीजी तक किसी भी बच्ची को पढ़ाने का कोई फीस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को पढ़ाया जाए। माताएं, बहनें, दीदी, आप लोग बताओ, बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कलकत्ते जाओ तो मेट्रो में बैठते हो, आपको टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ना? 2 मई को बाद बंगाल में किसी भी माता, बहन, बेटी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। सरकारी नौकरी में 33% माताओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये मेरे युवा बैठे हैं, इनकी रोजगारी एक घुसपैठिए छीन लेते हैं। आप कोई चिंता न मत करो, 5 साल के अंदर हर परिवार से एक युवा को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, मोदी जी एक योजना लाए, देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है। किसी को कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, गुर्दा बदलाना पड़े, किडनी बदलाना पड़े, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, मगर आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? जरा बोलो दीदी, मिलता है? ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मगर आप चिंता मत करो, 2 मई के बाद बंगाल के हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपया का फायदा हर गरीब को मिलेगा। ममता दीदी उसको रोक नहीं पाएगी मित्रों, रोक नहीं पाएगी। देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह प्रति साल नरेंद्र मोदी जी भेजते, 3 साल से भेजते। अब 18,000 रुपया देश भर के किसानों को मिल चुका है। बंगाल के किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ये दीदी लिस्ट ही नहीं भेजती। बंगाल के किसान को लगा मेरा 18,000 रुपया चला गया, मगर मैं आपको कहता हूं, मौका आया है। 2 मई को मोदी सरकार बना दो, 5 मई को सारे किसानों के अकाउंट में 18,000 रुपया
एक साथ ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बाद में हर साल 10,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा। मित्रों, हर महिला को गैस का सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया है, शौचालय देने का काम किया है और 2022 के पहले हर माता बहन के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मुझे एक बात बताओ भैया, मोदी जी देश भर के करोड़ों लोगों का भला चाहते हैं, दिन रात लोगों के भले की चिंता करते हैं और ये ममता दीदी दिन रात भतीजे को सीएम बनाने की चिंता करती है। कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए, कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में वोट किसको देना चाहिए? भतीजे की चिंता करने वाली ममता दीदी को देना चाहिए या गरीबों की चिंता करने वाले मोदी जी को देना चाहिए? जोर से बोलो, किसको देना चाहिए? मित्रों, ये भतीजा कल्याण में व्यस्त पूरा समय भतीजा कल्याण में व्यस्त ममता दीदी का विदाई का टाइम आ गया है। आ गया है, नहीं आ गया है? के निशान पर बटन तो जरूर दबाइए, मगर बटन इतने गुस्से के साथ दबाइए कि बटन ओस गांव में दबे और दीदी को करंट कलकत्ते में लगे। दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, मांझी बहन को जिताएंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मई को सोनार बांग्ला की शुरुआत होने के बाद फिर से मिलेंगे। सबको नमस्कार। আউসগ্রাম বিধানসভার পক্ষ থেকে অমিত শাহজিকে একটি ডোগরা শিল্পের মূর্তি তুলে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা সবাই জোরে করতালি করে অভিনন্দন জানান। এই মূর্তিটি তুলে দেবেন আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় তাপস তাজি এবং এস আলুওয়ালিয়াজি, অভিজিৎ তাজি, অভিজিৎ দা এবং এস আলুওয়ালিয়াজি। জোরে হাততালি দিন, জোরে হাততালি দিন। বন্দে মাতরম, বন্দে। আমরা এবার চলে যাবো, প্রতিনিধি পিউ রয়েছে গয়েশপুরে। গয়েশপুর সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। পিউ, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে গয়েশপুরে? একেবারে সমাধিতে আমি অবশ্যই জানাবো আমাদের রিপাবলিকের দর্শক বন্ধুদেরকে, কারণ আমরা রিপাবলিক যারা প্রথমেই কিন্তু এই ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়েছিলাম প্রত্যেককে, কারণ আমরা প্রথম থেকে খবর পেয়েছিলাম যে এখানে আবারও সে তৃণমূল গুন্ডা বাহিনীর কিন্তু আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ওই জন্য আমরা এখানে এসে আবার উপস্থিত হয়েছি। তোমাকে বলে রাখবো যে এইখান থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে বরানগরে আজ দেখো, আজকে বরানগরের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় বেশ কয়েকটা বুথ, তার মধ্যে কিন্তু রয়েছে 45 নম্বর বুথ, 31 নম্বর, 33 নম্বর, 34 নম্বর এবং 94 নম্বর। এই বুথগুলোতে কিন্তু একটা ছাপ্পার অভিযোগ উঠেছিল এবং বিজেপির প্রার্থী পার্নো মিত্র তিনি কিন্তু প্রতিটা বুথেই যান। কিন্তু আমরা যেটা দেখি আলমবাজারের যে জুট মিল সংলগ্ন যে বুথ রয়েছে সেইখানে যখন যান তাকে কিন্তু রীতিমতো বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। প্রথমে আলমবাজার মোড়ের যে বুথটি রয়েছে সেখানে তিনি যখন গেছিলেন আলমবাজার মোড়ে, তখন কিন্তু তার গাড়ি
ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের সমর্থকরা এবং তারপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর বড়বাগান সংলগ্ন যে বুথটি রয়েছে সেখানে তিনি যখন যান, সেখানে একজন বিজেপি পোলিং এজেন্ট, তার হাজবেন্ড এবং তার ছেলে, তাদের দুজনকে কিন্তু মারধর করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, এমনকি যে বিজেপির ক্যাম্প অফিস ছিল সেই ক্যাম্প অফিসটিকেও কিন্তু ভাঙা হয়েছে। এবং এরপরেই কিন্তু সেখানে পার্নমিত্র গেলে সেখানে বিজেপির যারা কর্মীরা তাকে অভিযোগ জানান এবং পাল্টা কিন্তু তৃণমূলের যে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কিন্তু পাল্টা চড়াও হন, যার ফলে পরিস্থিতি কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে বরানগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তরফেও কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কেউ কিন্তু এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু কিউআরটি টিমের যারা সদস্য তারা কিন্তু সেখানে পৌঁছান। সেন্ট্রাল ফোর্স সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে ডিপ্লয় করা হয়েছে এবং বড়বাগান সংলগ্ন এলাকায় কিন্তু রুটমার্চ চালানো হচ্ছে। সমাদৃতা ধন্যবাদ পিউ এবং ধন্যবাদ অনুপম। চক্রবাবু আজ এ পর্যন্ত। অন্যান্য সব খবরের জন্য সঙ্গে থাকুন